नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन पीरियड आप सभी का? सोशल डिस्टेंसिंग। Someone is peeping. 1, 2, 3. Cool. Emin Ibrahimi. Hello. Hi. Thumbs up. थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने का अपना ही मज़ा है। 5 लोग देख रहे हैं अभी। इमिन इब्राहिमी हा हा हा। रोशन पटेल सिंह मस्त सुपर। ये हुई ना बात। So good to see you after such a long time. I am awesome. Imin Ibrahimi, you can see me. Mazee John Mary, hi beautiful girl. Hello Mazee John Mary. Roshan Patel saying hi. Mohammad Junaid, hi, where are you nowadays? I'm here in Mumbai lockdown at my beautiful place. Sweet home. रोशन पटेल सिंह जैसे है। पंचराम वेरी गुड सुपर दैट्स द स्पिरिट सुपर पंचराम दैट्स गुड। धर्मेंद्र सिंह कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ जी, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। कृष्णमूर्ति वेलकम माय फ्रेश फ्लावर एंजल, थैंक यू सो मच कृष्णमूर्ति। रोशन पटेल सिंह मैंने ऑलरेडी कह दिया मैं अच्छी हूँ, देखो कैसी लग रही हूँ, अच्छी हूँ ना? I just want to have some good chit chat with you all people, lovely, beautiful, amazing souls. Asit Mishra, hi beauty. Hey handsome. Thumbs up and heart for everyone. Is it good heart? Santosh Puthan, hi, hello. How are the things in Sydney? I hope you all are good there, safe, secure. उत्कर्ष शर्मा नमस्ते नमस्ते। हम लोग बचपन में ये क्या करते थे, नमस्ते नमस्ते हम कुछ नहीं समझते। मज़ा आता है ना, बचपन की यादें और जो बदमाशियाँ हम लोग करते थे उसको आज भी अगर दोहराओ तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। टेल मी अबाउट कोविड-19। ऑफ कोर्स वैसे तो आज का जो विषय है हमारा वो डिप्रेशन, जो कि तनाव है जिसकी वजह से बहुत जाने जा रही हैं, उससे जुड़ी हुई बातें करने के लिए आई हूँ। लेकिन ठीक है, कोविड-19 के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है, लेकिन ठीक है चलता है। Rajbir Saini, hi everyone, is saying you pretty, gorgeous and more thing, but you really deserve. Thank you so much. Utkarsh Sharma, ma'am, your eyes look like heaven. Oh God, thank you. Beauty lies in the eyes of beholder. Okay, I'm sorry. Someone is saying hi. I'm unable to read that name because I don't understand that language. But hello. Fulgen Mandal, hi. Emil Yunat, who are you? Good question. I am Khushbu Poddar, a tiniest particle of this universe who loves to spread happiness, love, and joy, and who lives life to the fullest. I hope you got it. Emil Yunat.
सुनील कुमार नमस्ते नमस्ते. MZ John Mary, you're really blessed, my dear. I'm proud of you. Thank you so much. So is me. Proud of you all people. Your love and affection really gives me more energy, more enthusiasm to speak what I want to speak to you all. Thank you so much for showering me with so much of love, affection, wishes. It really, really means to me a lot. Heart, 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 heart. ओके तो हम ओके राजेश मनी जी हेलो. हनी पंजवाल हाय. फुलजन मंडल नमस्ते मलेशिया. ओके नमस्ते मलेशिया. थैंक यू सो मच. हनी पंजाबी हेलो. यू आर ब्यूटीफुल. थैंक यू. कमल मर्शी खुशबू सी फैली आज फेसबुक की फ़िज़ाओं में. घर पर बैठे हैं पर लगता है कोई मिल गया है बाग की राहों में. वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया. Honey Panjwani, you know me or not? Oh, that's interesting question. We can discuss it later. But I know, of course, I know you all. Because आप लोग हैं तो मैं हूँ और हमसे ये सारा जहाँ है. हमसे मतलब हम सब से. ओके उमराज शर्मा हाय हेलो. इतना सारा प्यार मिल रहा है आपका. ओके मोहम्मद शरफ़े आलम गुड इवनिंग. कैसे हैं? दरभंगा की फ़िज़ाओं में क्या चल रही है? सब सुरक्षित है या नहीं कोविड-19 से? कोरोना वायरसेस so many spikes coming out from everywhere. It looks so scary, na? I'm just trying to make some. Does it look like this? No. Sort of like this. Okay. Honey Panjwani, always like your pics, videos and comments on your pics. Thank you so much. It really means to me a lot. Thank you Honey Panjwani. वक्त ऐसा बीतता है जैसे लगता है भागता जा रहा हो जब भी आपसे बात करने आती हूँ. राजेश मनी जी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट एज यूजुअल. थैंक यू. बस आप सभी का प्यार है और दुआ है. सो मेनी हार्ट्स. थैंक यू सो मच. शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया. मुकेश राणा जी नमस्कार नमस्कार. उत्कर्ष शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया. टॉपिक पे आते हैं. मैम टॉपिक क्या है आज का जी? आज का टॉपिक है डिप्रेशन, तनाव जिससे लोग जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं और खुद में खुद लड़ रहे हैं. मृत्युंजय कुमार कैसे हो जी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. अब हम ये सब कमेंट्स को लेते हैं बाद में. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी कमेंट्स करते रहिए. आप सभी के जहन में जो सवाल है वो बेहिचक आइए और पूछिए. मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको सही बात बता सकूँ. मैं भी आप जैसी ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ अलग हूँ. बट एक आशा है, एक उम्मीद है कि इस सृष्टि में खुशियाँ और प्यार मोहब्बत बांटूँ और बदले में मुझे मिले भी. ऑफ कोर्स हर किसी की चाहत होती है. ये है. और चंदन कुमार हाय. मुझ सरफ़े आलम एवरीथिंग इज़ ओके बट आई एम इन नेपाल. ओके जी. तो नेपाल की फ़िज़ा कैसी है ये बता दीजिए. नेपाल की हवाओं में क्या जादू चल रहा है? वैसे कोविड-19 का इफेक्ट तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं है. ओके सरफ़े आलम सुपर्ब. बिहार में कल से छूट है रोहित पोद्दार जी. आई थिंक हर जगह में थोड़ा थोड़ा छूट कल से मिलने वाला है. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. आप सभी का जो सवाल है और जो कमेंट्स है करते रहिए, उसको हम ज़रूर लेंगे बाद में. संतोष पुत्र स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. वी आर सेफ. होपिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो एंड ऑल द लव एंड प्रेज विशेज़ फॉर ऑल द एंटायर नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. If you start taking the countries, it will be so many names. So it's all like pray and wishes from the heart and soul for entire people of the world to be safe, peace, in happiness and strengthful. Let us get over with this. Yes, of course, we need to. Varun Kumar looks superb. Okay. तो अभी जैसे कि कोविड-19 के प्रकोप से हम लोग जूझ रहे हैं, ये जो महामारी फैली है. डिप्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वापस से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग के पास साधन होते हुए भी
शायद वो जानना नहीं चाहते हैं या जान करके अनजान होते हैं। इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं उस बात पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहती हूँ कि डिप्रेशन, तनाव, ये क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। हम किसी भी चीज़ की अगर ये 3 के बारे में जानने की कोशिश करते, ये 3 शब्द, ओके, वैसे तो 5 WH लगाते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये 5 चीज़ अगर आप हर चीज़ में लगाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए जो भी आपकी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स है वो आप इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा उसके बारे में। लक्ष्मी देवी, मम्मा लव यू, बहुत अच्छा पढ़ी, प्रणाम आपको, चरण स्पर्श, दिल, और आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है मेरी लाडो। ओके, कुमार चिंटू, वेरी गुड। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी सब लॉकडाउन है, दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये घड़ी या ऐसा वक्त भी आएगा जब हम खुद के घर में कैद हो जाएंगे। तो कुछ इसके अच्छे वजह है, कुछ उसके बुरे वजह भी है। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं मेरे मुद्दे से भटकना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बात करने के लिए तो वक्त कम पड़ जाते हैं। तो जिस बात को करने आई हूँ, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन करना है। हाँ जी बिल्कुल, भास्कर टुम्मा, सही कहा आपने। तो पहले हमें जानना है डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है। तो डिप्रेशन कोई ऐसा अजीब सा शब्द नहीं है, ये बहुत ही आम शब्द है। तनाव हर किसी के ज़िंदगी में आती है, किसी के ज़िंदगी में 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसका आने का जो पैमाना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हमें समझना है। तनाव तब होता है जब हम खुद से कोई झूठी उम्मीद पाल लेते हैं या किसी और से या अपनों से या दोस्तों से, और उसको उसकी कदर ही नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है, उसके आप काबिल ही नहीं हो। या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप अपनी क्षमता को, जितना आप कर सकते हो उससे खुद को कम तौलते हो। कुछ भी ऊंचा नीचा डिप्रेशन तनाव को जन्म देता है। या फिर कुछ ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ये सब तनाव को जन्म देता है। और बहुत सारी इसकी वजह है। प्यार नहीं मिलना, बहुत लोग को अगर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं किसी काम को, पूरी जतन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसकी कदर नहीं मिलती है किसी से, तो भी तकलीफ़ होती है। या फिर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई सही बताने वाला नहीं है, तब भी डिप्रेशन होता है। या फिर फिज़िकली हम बहुत वीक है, मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम इन सब से उबर सकते हैं। हमें हमेशा ये 5 चीज़ जो मैंने आपको बताया उसको ज़िंदगी में अप्लाई करना है, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से। वो 5 चीज़ को मैं हिंदी में बताना चाहूँगी, जैसे कि हु, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करते हो तो आपको रास्ता दिखता जाता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, कभी कभी तो बहुत ही क्लियर रास्ता दिख जाता है। तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। डिप्रेशन कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये होता है, इसको मानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आप किसी से बात करते होंगे कि मुझे तनाव है या मन नहीं लग रहा है, मन बहुत बेचैन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, अगर आपको आपके बिज़नेस में लॉस हो गया, या आपके घर परिवार में कलह है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सब अनेक कारण है डिप्रेशन के, तनाव के। या फिर आप जब बहुत अकेले रहते हैं तो उसमें भी आप डिप्रेशन होने लगते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि आप उस अकेलेपन को उसको अच्छे से उसको जी रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर उस अकेलेपन से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो। आप लड़ते तब हो जब आपकी चाहत है किसी से कहने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किससे कहे। आप बोलना चाह रहे हो लेकिन सामने वाला कोई समझने को तैयार नहीं है। आशा कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
अगर नहीं तो प्लीज़ खुल के आइए, खुल के अपनी बातों को रखिए। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, ये सोशल मीडिया हमें खुशियाँ और प्यार मोहब्बत बांटने का एक ज़रिया मिला है, तो उसका इस्तेमाल करना मैं तो बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और आप सभी भी इस चीज़ को करिए, इसका लुत्फ़ उठाइए, इसको सही मायने में सही तरीके से इस्तेमाल करिए। और किसी भी चीज़ की अति भी करते हैं तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, बैलेंस करना है। किसको कितने अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, यानी कि तनाव के शिकार हो सकते हैं। ये सब हो गए डिप्रेशन क्या होते हैं। अब आते हैं इसके, ये हो गए आपके प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम पे, यानी कि ये जब होता है, तनाव होता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें, क्या लक्षण हमें दिखने को मिलती है। मन नहीं लगना, चिड़चिड़ करना, अगर कोई अच्छा बात भी करे तो झल्ला जाना, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, नींद सही टाइम पे नहीं आती है, मन हमेशा विचलित रहता है, बेचैन रहता है, मतलब कहीं ना कहीं भाग रहा होता है, हताश होना, सवालों के अंबार से लग जाना कि हम क्या कर रहे हैं, हम जी क्यों रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, और हमारे जीने से क्या किसी को फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस वक्त जब हम ये सोचते हैं उस वक्त जब हम ये सोचते हैं तो हम उसको सही मायने में, सही पैमाने में तौल नहीं पाते हैं। उसका जो होता है असर, वो उसका एकदम उल्टा होता जाता है, क्योंकि हम जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब भी हम खुद ही सोचते हैं, जो कि एकदम सही मायने में बताऊं तो नकारात्मक होती है। जबकि आपको पता है जीना कितना ज़रूरी है, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, और दिक्कतें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है। दिक्कतें हैं तो उसका हल भी तो है। वैसे मेरे मित्र लोग काफ़ी सारे सोल्यूशन बता रहे हैं, मैं इन सभी के सोल्यूशन को बहुत जल्द लेने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, आप सभी के साथ साझा करूँगी। तो ये सारी बातें हैं, मतलब अपनी बात को कहने में हिचकिचाहट होना, काम में मन नहीं लगना, जिस काम में आप 100% दे सकते हैं, आपको पता है कि आप में काबिलियत है, फिर भी जो नकारात्मक सोच होती है वो आपकी सोच को कम कर देती है। तो इस चीज़ से गुज़रने के लिए, इस चीज़ को पार करने के लिए, ये जो मुश्किल घड़ी आती है, वक्त एक अहम कीमती चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ें उभरती जाती है, आपको रास्ते मिलते जाते हैं, लेकिन आँख, नाक, कान, दिमाग खुला रखना है। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाते हैं, और जो रास्ता दिखाते हैं तो उसमें भी वो नकारात्मक बातें करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है करने का, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब। आप खुद को बेहतर जानते हो, आपसे बेहतर दुनिया में आपको कोई नहीं जान सकता। आप खुद के अंदर में जो टैलेंट है, आपके जो आपकी प्रतिभा है, उसको आप समझ सकते हो, लेकिन उसको समझने के लिए वक्त तो चाहिए जनाब। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए वक्त दीजिए। जो अकेलेपन है उसके शिकार मत बनिए, उसके साथ खेलिए। ये आता है हम डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं, इस मोड पे, इस पॉइंट में। डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, शायद मैंने समझा दिया है। प्रॉब्लम क्या है मैंने भी बता दिया। तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, कुछ अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, कुछ पॉइंट मिस भी कर सकती हूँ। ये मुश्किल घड़ी है, तो ये मुश्किल घड़ी सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया में समस्त लोगों के लिए है, समस्त जानवरों के लिए है, समस्त प्रकृति के लिए है इन चीज़ों से उबरना। जब हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था तो प्रकृति बहुत नुकसान में थी, जीव जंतु बहुत रो रहे थे, बहुत तकलीफ़ में थे। आज हम थोड़े तकलीफ़ में हैं तो आज प्रकृति खिल रही है, मुस्कुरा रही है। आज अगर हम तकलीफ़ में हैं तो वो जानवर अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा रहे हैं, और हम आज समझ पा रहे हैं कि वो किस दौर से, किस दुख से गुज़र रहे थे। तो ज़िंदगी के पहलू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी के जूते में जा कर के देखेंगे, जूते का मतलब ये नहीं कि किसी के जूते में पैर डाल के देखना है, मतलब किसी के छवि में, किसी के जगह पे खुद को रख करके देखेंगे तो आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें प्यार मोहब्बत से निपटना है। कोविड-19 का
ये प्रकोप चल रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे परिवार, आप सभी मेरे परिवार हैं, आप सभी के हिम्मत से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि आप इन सब चीज़ों से गुज़रे। और जो ये बात कह रही हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझाइए, साझा करिए। सबका अपना अपना तरीका है, आप भी देखिए कि आप किस तरीके से सृष्टि में प्यार मोहब्बत फैला सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, और अब आते हैं इसके हल में। हल इसका ये है, सबसे पहले मन की बात को बोलिए, सही इंसान को तलाशिए जो आपको समझता है। कोई ना कोई तो होगा आपके परिवार में या आपके दोस्त में, या बहुत लोगों को कोई नहीं मिलता है तो रब राखा ईश्वर सबका सहारा है, तो उनके शरण में भी आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, मानती सभी ईश्वर को हूँ, लेकिन उनकी बेटी हूँ। इस बात को मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ कि क्योंकि हर किसी में हम किसी न किसी को ढूंढते हैं। तो मेरी माँ है, आपके भी परमपिता परमेश्वर होंगे, ईश्वर होंगे, अल्लाह होंगे, गुरुदेव होंगे, कोई भी ऐसे जीसस होंगे, कोई भी ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिसको आप मानते होंगे, या आपने अपने मन में उनको याद किया होगा, उसको संवारा होगा, उनको स्वीकारा होगा। तो उनको याद करना है हमें, लेकिन हमें हमेशा खुश रहने की प्रयत्न करते रहनी है। खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन खुशी जो बहुत अनमोल है उसको किसी को भी किसी भी कीमत पे छीनने मत दीजिए। कोई भी अगर उसको छीनने की कोशिश करता है तो उसको बिग नो वे, एंट्री नॉट अलाउड। चाहे वो आपका अपना हो या बाहर का हो या दोस्त हो या सगे संबंधी कोई भी हो, आपकी खुशी को छीनने का हक किसी को नहीं है, और कोई नहीं छीन सकता जब तक आप ना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी आती हूँ तो वक्त कैसे गुजरता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हमें खुश रहना है, और ऐसा भी वक्त होता है जैसे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यकीन मानिए किताब से अच्छा दोस्ती कोई हो नहीं सकता। अच्छी किताब पढ़िए, बुक्स पढ़िए, और किताब आपसे सिर्फ वक्त लेता है लेकिन बदले में आपको बहुत कुछ देता है। लेकिन एक अच्छी किताब होनी चाहिए। जिस भी प्रकार का आप किताब पसंद करते हैं, चाहे वो रिश्तों से जुड़ी हो, या वो खाने बनाने से जुड़ी हो, या वो गुरु ग्रंथ हो, या भागवत गीता हो, या वो बहुत ही पाक किताब कुरान हो, या गुरु ग्रंथ हो, या बाइबल हो, किसी भी किताब को, या कुछ कहानियाँ वाली किताब आप पढ़ रहे हो, या कुछ किसी की जीवनी आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसको पढ़ो, दिल से समझो, तो आपको ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा आएगा। आप ज़िंदगी को अलग तरीके से धीरे धीरे देखना सीखोगे। अच्छी संगति में रहिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इससे उबरने का। खुद को समझिए, खुद के जो विकार है, खुद के जो आपको लगता है कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो उस विकार को दूर करिए। हर किसी में अच्छाई और बुराइयाँ होती हैं, तो अच्छाई को हमें बढ़ाते जाना है, बुराइयों को हमें घटाते जाना है। अच्छे और बुराई का जो पैमाना है वो हमें तौलना है, क्योंकि हो सकता है कि जो अच्छा आपके लिए हो वो हमारे लिए ना हो सकता है जो बुरा आपके लिए हो वो हमारे लिए अच्छा हो। तो सही गलत कुछ भी नहीं है। कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। इस बात में बहुत सत्यता है, इसको समझना है, और इसके बारे में जो सही से विश्लेषण है हमें उसको करना है। हर चीज़ में प्यार है, हर कण कण में प्यार है, उसको महसूस करना है, रिश्तों को संवारना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप निजी ज़िंदगी में खुश नहीं है तो आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें सफल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस निजी ज़िंदगी को खुश करने के लिए मेहनत आपको करनी है। उसको कैलकुलेशन आपको करना है कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे हटाना है। ये फ़िल्टर हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे जब हम पानी को फ़िल्टर करते हैं या किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो हम छानते हैं उसको,
छानते हैं तो जो उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको हम छानते जाते हैं और हम वो चीज़ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसकी बहुत अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है हंस। हंस से हम ये सीखते हैं कि आप उनको दूध पानी कितना भी मिला के दीजिए, वो दूध पी लेगा लेकिन पानी छोड़ देगा। हर जानवर, हर प्रकृति, हर चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। शिकायतें या जो कंप्लेनिंग नेचर है उसको छोड़ दीजिए, जो वास्तविकता है उसमें जिए, वास्तविकता को समझिए। अगर जिससे आपको तकलीफ़ है, अगर आपको दुख है तो है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, तकलीफ़ें नहीं होती, नाराज़गी नहीं होती, नफ़रत नहीं होती। दूर करने की कोशिश करिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, आपने लाख कोशिश की रिश्ते जोड़ने की, उस दुख तकलीफ़ को दूर करने की, अपनी दिल की बात कहने की, लेकिन अगर वो इंसान उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, आपने लाख जतन कर लिए, तो एक बात कहना चाहूँगी, चाहे वो आपका अपना हो या दोस्त हो या कोई भी हो, उनसे दूरी बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे नफ़रत कर लीजिए, सच्चाई को स्वीकार लीजिए तो तकलीफ़ कम होगी, क्योंकि हमें तकलीफ़ वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ हम उम्मीदें पालते हैं। उम्मीद होनी चाहिए, पर कहाँ? सही जगह, सही लोग से, सही इंसान से, सही अपनों से, सही दोस्तों से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब कुछ देखते हैं कि हमारे मित्रों ने हमारे लिए क्या लिखा है, मेरे दोस्तों ने कुछ कमेंट्स लिया जाए। तो शायद मैं प्रॉब्लम और सिम्टम और सल्यूशन इन सब पे, और घर के रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। जो जैसा है, देखिए छोटे बचपन में आप उसको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, पुचकार सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको वहीं उसी हालत पे छोड़ दीजिए, दुआ करिए और उनको उसी तरह से स्वीकार कर लीजिए। उम्मीद मत करिए कि वो आपसे वो बदल जाएंगे, क्योंकि वो भी आपसे वही उम्मीद करते हैं। तो उस उम्मीद को ही ख़त्म कर दीजिए जिससे कि हमें दुख और तकलीफ़ होती है। चलिए कुछ लेते हैं कमेंट्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, यहाँ तक मैं ले चुकी हूँ। लक्ष्मी देवी बहुत अच्छा पढ़ी। बड़ी 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 हूँ मैं, कितना अच्छा लगता है ना। आप लोग फरिश्ते हैं और दुनिया की तमाम औरतें, तमाम बेटियाँ, तमाम औरतें, मैंने बोल दिया, सब पढ़ी है, अप्सरा है। ओके, हनी पंजवाल ने लिखा है, इश्क के फूल खिलते हैं तेरी खूबसूरत आँखों में, जहाँ देखे तू एक नज़र वहाँ खुशबू बिखर जाए। शुक्रिया शुक्रिया। चंदन कुमार, आप कहाँ हो? जी मैं मुंबई में हूँ। भास्कर तुम्मा, अच्छा मैंने आपका कमेंट ऑलरेडी लिया था, पर ठीक है मैं फिर से बताना चाहूँगी। इन्होंने कहा है डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन करना है। हाँ जी बिल्कुल, जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छे कार्य आपको लगते हैं उसको बिल्कुल करिए। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप तप कर सकते हैं, आप अपनी कला को संवार सकते हैं, अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा क्या बोल सकते हैं, आप अच्छे नृत्य कर सकते हैं, अच्छे अभिनय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर देखने चाहे तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। कुछ नई चीज़ों के आविष्कार कर सकते हैं, कुछ नई जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। विकी शर्मा, हाय खुशबू, हाय हाउ आर यू? हे आई एम सुपर ऑसम। हनी पंजवाल, योर आइज आर वेरी ब्यूटीफुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विक्की शर्मा, हाउ लॉन्ग इंडिया विल डिस्कवर द मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस? ये बहुत ही complicated question hai. It's complicated right now because we have no any idea that when is the vaccine going to come for, is going to be discovered for coronavirus, because this is a pandemic which is faced first time ever on our planet, a kind of symptom which is first time we are facing
and we are getting to see it. So our world was not at all ready to fight this kind of traumatic effect, but this gives a lesson that we need to prepare ourselves. In order to fight, if you're going to a war, you need sword, you need a defense material, so you need to be prepared, because it's we have created and destroyed nature from every angle, aspect and inch of it, which I already said number of times, harming animals, harming human being. It's easy for people to kill each other, it's easy for people to hurt each other, nobody bothers. So it's high time to now think and come to our religion, which is humanity. सबसे पहले आप इंसान बन जाइए. मज़हब को सलाम करती हूँ, मज़हब को दिल में रखिए, दुआ करिए, प्यार करिए, मोहब्बत करिए. कोई मज़हब नहीं सिखाता ईर्ष्या करना या बैर फैलाना या गलत फहमी फैलाना. सब में प्यार मोहब्बत ही है. तो सबसे पहले इंसान बनिए. इंसान बनेंगे तो ये प्रकृति, ये पृथ्वी खुद ही बहुत खूबसूरत बन जाएगी. तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. जो सरकार हमारे लिए नियम तय कर रही है, जो रास्ता सुझा रही है, उस पर हमें चलना है. एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को थामे रखना है, यहाँ से और यहाँ से. ओके, मोहम्मद मुमताजिम गुड, चंदन कुमार गुड, भास्कर तुम्मा आज मैं बहुत खुश अपनी लाइफ मस्त जी रहा हूँ बिकॉज ऑफ श्री श्री रविशंकर जी. जी बहुत अच्छी बात है. रविशंकर जी को मेरा भी प्रणाम. और मायूर छावड़ा, ओनली वन सोल्यूशन, नेवर फील अलोन बिकॉज यू आर ऑलवेज विथ योर सेल्फ. सुपर, बहुत अच्छी बात मयूर छावड़ा जी ने कही है कि आप हमेशा खुद को अकेलेपन में बिल्कुल भी मत महसूस करिए. ऐसा महसूस करिए कि आप खुद के साथ हैं. खुद के साथ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जादू कर सकते हैं. थम्स अप मयूर छावड़ा, अ वेरी गुड सोल्यूशन. जस्ट एंजॉय योर ओन कंपनी, यू विल नेवर फील डिप्रेस. सुपर. सिंह जसपाल सिंह की हाल जी? चंगा है जी. मैं भूल गई क्या बोलते. तुसी गल करो, तुसी गल करो, आपका क्या हाल है? मैं भूल गई अभी, सॉरी. तुसी गल करो की हाल है जी. आई होप मैंने सही बोला. ओके. सिंह जसपाल सिंह, आई एम मलेशिया. ओके, आप मलेशिया हो या यू आर फ्रॉम मलेशिया? रिया खान, हार्ट फॉर यू, ब्यूटीफुल गर्ल. सिंह जसपाल सिंह, साई गिला. नवीन झा, क्या हाल है? क्या हाल है जी? मुश्किल कुछ भी नहीं, सब कुछ आसान है. बस देखने का नज़रिया बदलिए. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको यूं ही ज़ाया मत करिए. ओके, मोहम्मद खान, हाय. सिंह जसपाल सिंह, वीडियो कॉल. हाँ जी, ये वीडियो कॉल का एक ज़रिया है. प्रिंस मेहंदी. सिंह जसपाल सिंह, जय श्री राम, जय श्री राम. इंद्रदेव बंसल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. प्रमोद झा, शुभकामना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना. इंद्रदेव बंसल, होप यू आर वेरी वेल. या आई एम ऑसम. बस आप लोगों की दुआएं हैं, प्यार है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अच्छी हूँ. रंजीत पोद्दार, कहाँ, सॉरी, ओके, कहाँ से हैं आप? सच बताऊँ, मैं स्वर्ग से हूँ. मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप भी महसूस कर सकते हैं. लक्ष्मी देवी, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा माँ. मृत्युंजय कुमार, सत्य बच्चन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सिंह जसपाल सिंह, हेलो गर्ल कॉल, हेलो गर्ल कॉल, हेलो बॉयज कॉल. जसपाल सिंह, ओके. असलम चिंबू, हाय. सिंह जसपाल सिंह, इट्स इंटरेस्टिंग. असलम चिंबू, हाय.
उर्दू में लिखा है, माफ़ कीजिएगा मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता। सिंह जसपाल सिंह बॉडी, जी बिल्कुल, ओके। मंजूर आलम, टू मेक अमर हृदय दिया वालो बेस। नासिफ हनीफ, हाय एंग्री बर्ड, हेलो नासिफ हनीफ। राना शेखो राना, हेलो राना शेखो राना, की हाल जी? मैं बिल्कुल मस्त जी, एकदम मस्त चंगा, रॉकिंग सुपरबली फैंटास्टिकली फिट एंड फाइन। नासिफ हनीफ लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू सो मच। राना शेखो राना, की हाल जी? मिराज अली, नाइस, थैंक यू सो मच। कमल बुद्धा, अच्छम, हाय। राना शेखो राना, आई लव यू ऑल। Bokal bro, lovely girls, so is you everyone out there. Kamal Buddha Acham, hi, how are you? I am awesome as already said. चलिए इसी मैसेज के साथ, इसी बात के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ फैलाइए। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसको यूं ही ज़ाया मत करिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्नेहाशी चक्रवर्ती, हाय, हाउस लाइफ? लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड इफ इट इज नॉट, मेक इट हैपन। इट इज ऑल इन योर हैंड्स। मेक लाइफ ब्यूटिफुल।